amines. If anyone will have any problem, immediately inform me. Okay, sir, this is the problem, voice or screen. So 80%, 85% part we had discussed. So what we had discussed, that is definition of amine is over, then structure, then classification of amine is over, nomenclature in common system, in IUPAC system, both are over. Then after preparation, all the methods of preparation of amine is over. The last two is very important because these are the name reaction, and very important name reaction, again I am saying. रीजन इज देयर कि माइंड में ये रहता है कि नाम ही इतना बड़ा है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, ब्रोमीमाइड रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन तुरंत याद हो जाता है, फेटिक रिएक्शन तुरंत याद हो जाता है। तो जिसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सो जब पेपर सेटर जो होते हैं वो यही सोच के सेट करते हैं कि शायद इस नाम से ही, ये नाम ही ना पढ़ने में उसको आए तो ना कर पाए। सो प्लीज रिमेंबर दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी अल्टरनेट ईयर आई एम सीइंग दिस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। कोई एक जरूर रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, सो इन दोनों को जरूर से याद किए रहिएगा। ऑल द इंफॉर्मेशंस आर ओवर रिलेटेड टू प्रिपरेशन, then physical properties, boiling point and solubility. After this, chemical property. In chemical property, basic character I had not discussed. Acylation is over, benzoylation is over, carbylamine is over. Another name of carbylamine I informed you, isocyanide test, which is given by first degree, not second and third degree. So this is the test to differentiate or distinguish the primary, secondary and tertiary amine. Now miss primary with secondary and primary with third degree. Diazotization, I this is used to differentiate the aliphatic and aromatic amine, not primary, secondary, tertiary. All the three are giving this reaction, but primary is in your syllabus, secondary, tertiary is not in your syllabus. And aliphatic will not form the BDC, aliphatic is not form the diazonium salt because that diazonium salt is unstable to form the alcohol. जो diazonium salt होता है एलिफेटिक का वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। सो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो एरोमेटिक का होता है वो स्टेबल होता है, ये आपको बताया गया था। देन आफ्टर हिंसबर्ग टेस्ट, दिस वाज इन द लास्ट क्लास, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देन आफ्टर आपको बताया गया था कि इट रिएक्ट प्राइमरी टू फॉर्म एन ethyl benzene sulfonamide which is soluble in alkali. Why it is soluble in alkali? Then after N diethyl benzene sulfonamide and it is insoluble in alkali. Why it is insoluble in alkali? And tertiary is not react with Hinsberg reagent. Why it is not react with Hinsberg reagent? The reason was there. Then after this is used to differentiate the primary, secondary and tertiary amine and also separate the primary, secondary and tertiary amine from their mixture. ES reaction, that day I discussed the resonance effect of aniline. Resonance effect of aniline. In aniline I informed you कि amine group is electron donating group, so it increase electron density at ortho and para position. That's why upcoming electrophile attack at ortho and para position, so it is ortho para directing group from the ortho para product. Then after bromination, in bromination and nitration, these two are very important. In bromination, when aniline undergo bromination with bromine water, then it form 2,4,6 tribromoaniline. तब ये बनाता है 2,4,6 tribromoaniline. Why it form 2,4,6 tribromoaniline? Then I informed you कि because it means amine group is highly activating group, a powerful activating group. amine group जो होता है वो powerful activating group होता है. That's why it activate the ortho para both the position, so it form the, ठीक है, 2,4,6. And
इट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वाइट पीपीटी। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म द वाइट पीपीटी। देन व्हाट इज दैट वाइट पीपीटी? दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। Then question was there कि if we want to prepare only ortho or para product, then how can we prepare the mainly the para, that is means, so how can we prepare the para bromoaniline? अगर हमको पैरा ब्रोमोएनिलीन बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? देन आई हैड गिवन इंफॉर्मेशन कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैरा ब्रोमोएनिलीन, फर्स्ट एनिलीन विल बी अंडरगो एसाइलेशन टू फॉर्म एन फेनिल इथेनामाइड, बनाता है एन फेनिल इथेनामाइड, विच अंडरगो ब्रोमिनेशन देन फॉर्म पैरा ब्रोमो एन फेनिल इथेनामाइड। That para bromo and phenyl ethenamide undergo acidic hydrolysis, then form para bromo aniline. Means the question will be there कि why for preparation of para bromo aniline it is necessary to send the aniline for acylation, because in aniline NH2 group is a powerful activating group, and by acylation it convert into amide. ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमाइड ग्रुप में। एंड द activating nature of amide is less than aniline. That's why it only substitute the bromine at ortho and para, out of which para is major. But if it will not undergo acylation, then amine is highly activating group, then is substitute the bromine at ortho and para both the position. So इसके लिए हमको एक्टिवेटिंग नेचर रिड्यूस करना है। एक्टिवेटिंग नेचर इज रिड्यूस बाय द कन्वर्जन ऑफ अमाइन इनटू अमाइड। जब अमाइन को अमाइड में बदल देते हैं तो एक्टिवेटिंग नेचर रिड्यूस हो जाता है। दैट्स व्हाई फर्स्ट एसाइलेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इन योर एक्सरसाइज आल्सो, कि पहले तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई for formation of para bromoaniline it is necessary to send the amine for acylation, or after acylation aniline produce only para bromo, why not 2,4,6, and convert the aniline into para bromoaniline, ऐसे आएगा। तो तीन तरीके से क्वेश्चन आएगा, थ्री वे में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट, that day last which I had discussed, nitration. In nitration I informed you in the whole syllabus, whole book, first and second whole book, this is the place where the mixture of ortho, meta and para products are formed. ये एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों प्रोडक्ट बनता है। अभी तक मैंने बताया था या तो ऑर्थो पैरा बनेगा या तो मेटा, because the group will be either ortho para directing or meta directing, but here in this ortho, meta, para, all three products are formed. So when aniline undergo nitration with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4, then it form a mixture of orthonitroaniline, metanitroaniline and paranitroaniline. The percentage is also very important. What percent of ortho nitroaniline is produced by nitration? 2%. What percent of metanitroaniline is produced? 47%. What percent of paranitroaniline is produced? 51%. Remember, the percentage is very important. Now next question is here, जो इस पे पूछता है एक्सरसाइज में भी है कि NH2 group, as you have seen, NH2 group is ortho para directing group, NH2 group ortho para directing group है, then how it is produce meta product also, and not in very little amount. ये भी नहीं कि इसी तरह चलिए बन गया होगा, कुछ भी बहाना आप कर देंगे कि अरे 1% बन गया होगा, 1% आ गया होगा। No, it is in very high amount,
47%. So this question is there कि why means क्वेश्चन यही है आपके एनसीईआरटी बुक में कि सिंगल बॉन्ड NH2 इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट, ठीक है, why significant amount of meta product is or meta derivative is formed in nitration of aniline. सिंगल बॉन्ड NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसमें मेटा प्रोडक्ट कैसे बनता है? सो योर आंसर विल बी देयर बिकॉज, ठीक है, बिकॉज द नाइट्रेशन takes place in stronger acidic medium. strong acidic medium concentrated H2SO4, इससे strong acid तो कोई है नहीं. So because nitration takes place in strong acidic medium, and in strong acidic medium this aniline gain the proton from acid. acid से proton ले लेता है because aniline is base. So gain the proton from acid and convert in anilinium ion, और एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दैट इज 100% राइट, बट एनिलीनियम इज मेटा डायरेक्टिंग. दिस एनिलीनियम इज मेटा डायरेक्टिंग एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन के बनने के कारण इन नाइट्रेशन मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म. मेटा प्रोडक्ट भी बनता है बट नॉट ऑल द एनिलीन आर कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम. पूरा एनिलीन एनिलीनियम में कन्वर्ट नहीं होता है. इट हैज बीन सीन कि अप्रॉक्स 47% एनिलीन इज कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम, सो दैट 47% फॉर्म द मेटा प्रोडक्ट. वही 47% मेटा प्रोडक्ट बनाता है. So this will be your answer. Now next was there, I informed you कि same way कि ये बना रहा है नॉर्मल कंडीशन में मिक्सचर, बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर जस्ट पैरा नाइट्रो एनिलीन, अगर आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगेन सेम कंडीशन. फर्स्ट एनिलीन अंडरगो एसाइलेशन टू फॉर्म and phenylethinamide or acetinolide. This will be now undergo nitration. जो प्रोसेस यहाँ था कि पहले एसाइलेशन करा के एसिटिनोलाइड बनाएंगे. एसिटिनोलाइड इज कॉमन नेम, IUPAC नेम इज एंड फेनिलइथेनामाइड. इस नाम को याद किए रहिएगा. मे बी द क्वेश्चन विल बी देयर कि राइट IUPAC नेम ऑफ एसिटिनोलाइड एंड फेनिलइथेनामाइड. फिर इसका ब्रोमिनेशन करा रहे थे और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस. तो सेम इज हियर, एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस. सेम इज हियर, एसाइलेशन देन नाइट्रेशन क्योंकि हमको नाइट्रो बनाना है, एंड देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस. सो इन दिस फॉर्मेट, इन दिस वे इट फॉर्म द ओनली पैरा प्रोडक्ट. बनाएगा ऑर्थो पैरा मीन्स मेटा नहीं बनाएगा. वाई इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग मेटा इन दिस केस? फिर से वही बात आ गई, एनिलीन में NH2 था तो वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा था, बट आफ्टर एसाइलेशन NH2 इज नॉट देयर, सो दिस विल नॉट कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम आयन. अब तो वहां अमाइड आ गया है. सो एनिलीनियम आयन विल नॉट बी देयर. एनिलीनियम आयन ही मेटा डायरेक्टिंग था. एनिलीनियम आयन विल नॉट बी देयर, सो इट विल नॉट फॉर्म द मेटा प्रोडक्ट. खत्म हो गया. नाउ सल्फोनेशन. सल्फोनेशन, सल्फोनेशन इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट. भाई इसमें भी तो वही बनेगा ऑर्थो पैरा. सो सल्फोनेशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस वे. सी व्हेन एनिलीन undergo sulfonation with concentrated H2SO4 in presence of sulfur trioxide. सल्फर ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में या तो ओलियम पूरा बोल दीजिए, हालांकि आपके में H2SO4 लिखा है बट H2SO4 के साथ SO3 होता है, आपको बताया गया था, और मे बी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और ओलियम कहते हैं. देन इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. तब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, H+ ले लेगा. सो कॉम्प्लेक्स कैसे बना? वही प्रोसेस, एनिलीन में H+ गया, एसिड H+ देगा, एसिडिक मीडियम है, सो इट फॉर्म एनिलीनियम आयन NH3+, और इस NH3+ के पास ये माइनस वाला अट्रैक्ट हो जाएगा,
So intermediate complex, which on heating at 453 to 473 Kelvin, जब इतने टेम्परेचर पे हीट करेंगे, देन SO3H will comes and attack at, ठीक है, here. So SO3H कैसे आएगा? बाय डिहाइड्रेशन. तब इसमें से क्या रिलीज होगा? वाटर, H2O. वाटर कैसे रिलीज होगा? सो पैरा पोजीशन से H प्लस जाएगा एंड जो H2SO4 यहाँ अटैच हुआ था उसमें से OH जाएगा. मैंने आपको पहले बता दिया है कि इन सल्फोनेशन, फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बता दिया गया है कि इन सल्फोनेशन H2SO4 is not broken down H plus and HSO4 minus. It is broken down into HSO3 plus and OH minus. So after heating, जो H2SO4 यहाँ था, that will be give the OH minus and convert into HSO3 plus. That HSO3 plus is now electrophile. It will be attack at ortho position, and then after release the H plus, that H plus will be react with OH minus to release the water. So that is the way. ठीक है. Aniline hydrogen sulfate will undergo dehydration on heating at 453 to 473 Kelvin. ठीक है. मीन्स अप्रोक्स आपका हो गया 200 केल्विन, 180 से 200 केल्विन, सॉरी 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट केल्विन. देन इट फॉर्म, ठीक है, सल्फानिलिक एसिड. दिस नेम वाज प्रेजेंट, ठीक है, 3 years back in board question paper. Write the IUPAC name of sulfanilic acid. नाम से देखिए पता कर लेंगे. सल्फा एनिलिक एसिड. थोड़ा सा दिमाग लगाइए. एनिलिक मतलब एनिलीन कह रहा है, एनिलीन ये हो गया, और सल्फा मतलब उस पे सल्फा एसिड है, मतलब सल्फोनिक एसिड है. सो इसका आईयूपीएसी नेम पूछ रहा था. तो आईयूपीएसी नेम में इट हैज द टू फंक्शनल ग्रुप, NH2 and SO3H. Which one is the more powerful? SO3H. तो आपको क्या बताएगा था? जो ज्यादा पावरफुल हो मेन नेम उसके साथ जाएगा. सो दिस विल बी साइड. तो इस नेम विल बी, इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज पैरा एमिनो, पैरा पे एमीन चला जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड कॉमन नेम इज सल्फानिलिक एसिड. रिमेंबर, एसिटिनेलाइड एंड सल्फानिलिक एसिड. नाउ ये सल्फानिलिक जो बना, दिस इज पैरा प्रोडक्ट. ये तो आपका पैरा प्रोडक्ट हो गया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस, दिस इज नॉट इन स्टेबल फॉर्म. ये स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है. इट कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, प्रेजेंट बाय द डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन in the form of Jupiter ion. This is called Jupiter ion. Jupiter ion is not the name of this compound. इस कंपाउंड का नाम Jupiter ion नहीं है. Remember this. जैसे सल्फानिलिक is the name of this compound. केवल इसी को सल्फानिलिक एसिड कहेंगे, कुछ और को नहीं कहेंगे. But Jupiter ion is that species in which positive and negative both the ions are present. You can say at maximum distance. जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्यूटर आयन. एंड ज्यूटर आयन आपको दो जगह मिलेगा आपके सिलेबस में. एक यहाँ पर है और सेकेंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल. बायोमोलिक्यूल में अमाइन में मिलेगा, अमाइन. सो ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज ज्यूटर आयन? So that organic compound or organic ion, that organic ion in which, ठीक है, cation and anion both are present at their maximum distance and both can be, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो एंड बाय द एंड फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन के डोनेशन से बने हो. प्रोटॉन
इसका एक्चुअल कंपाउंड है सल्फानिलिक एसिड, लेकिन ये प्रोटॉन को डोनेट करके NH3+ बनाता है और SO3- बनाता है। सो दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन। सो ये भी कह सकता है एनिलीन से ज्विटर आयन बनाइए। सो ये एनिलीन का ज्विटर आयन है, ठीक है। दिस कंपाउंड इज नॉट कॉल्ड ज्विटर आयन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ज्विटर आयन। जब प्लस माइनस दोनों होते हैं तब ज्विटर आयन कहा जाता है। एंड दैट प्लस माइनस चार्ज कम्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन और ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ये भी जरूरी है, किसी और रीजन से प्लस माइनस ना आया हो, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन से, एंड दैट प्रोटॉन कैन बी रिवर्स, कम्स रिवर्स, वापस भी आ सकता हो। दैट्स व्हाई रिवर्सिबल साइन इज देयर। सो दिस इज, इसमें स्पेशल ये था कि इट नॉट फॉर्म द डायरेक्ट पैरा प्रोडक्ट, it form a complex which undergo dehydration then form the para product, and that para product is also stable in the form of ज्विटर ion. So दो तीन नाम इसमें आ रहे हैं, सल्फानिलिक एसिड, ज्विटर आयन, that's why this is very important. And last, Friedel Crafts. So now first time, this is for your good luck, that aniline not give Friedel-Crafts reaction, no alkylation, no acylation, and this can be a question, और ये खुद एक क्वेश्चन बन जाता है कि why aniline not give Friedel-Crafts reaction, aniline Friedel-Crafts reaction क्यों नहीं देता है। रीजन इज रिटन हियर कि हम जब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या लेते हैं, कोई एक सबस्ट्रेट लेते हैं प्लस एक रिएजेंट लेते हैं, और यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट लेते हैं ड्राई AlCl3। सो प्रोसेस इनिशिएट कैसे होता है, इससे आपको बताया गया था कि ये इससे रिएक्ट करके, रिएजेंट से रिएक्ट करके पहले एक न्यू इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, वो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है, आपको बताया गया था। बट मतलब दिस ड्राई AlCl3 इज नॉट रिएक्टिंग विथ सबस्ट्रेट, इट इज रिएक्टिंग विथ रिएजेंट, ये रिएजेंट से रिएक्ट करता है। बट एनिलीन, इन एनिलीन NH2 इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसके कारण जो एनिलीन है, इफ इट विल अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराने जाते हैं तो यहाँ पे हमको एल्काइलेशन के लिए RX लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पे ड्राई AlCl3। सो पहले ये X इससे रिएक्ट करता था, आपको बताया गया था, और R+ देता था, एंड दिस R+ इज अटैकिंग। बट इफ एनिलीन विल बी देयर, अगर एनिलीन यहाँ पे ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2, सो इससे ये रिएक्ट करने ही दे देता है, इट डायरेक्ट गो एंड रिएक्ट विथ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट, ये खुद फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट से जाकर के रिएक्ट कर जाता है। सो जो प्रोसेस पहले इससे रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल बनना था, वो इलेक्ट्रोफाइल बनता ही नहीं है, सो ES रिएक्शन नहीं होता, ES रिएक्शन नहीं होता है। रिमेंबर, एनिलीन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है, मतलब ES रिएक्शन नहीं करता है। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि एनिलीन नॉट रिएक्ट विथ RX और एनिलीन नॉट रिएक्ट विथ ड्राई AlCl3, ऐसा कुछ नहीं है। ये ES रिएक्शन में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट पहले रिएक्ट करता है RX से और R+ बनाता है, वो R+ अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे एनिलीन डायरेक्ट गो टू रिएक्ट विथ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट, एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट से डायरेक्ट रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्म द सॉल्ट, और क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस केवल इतना लिखना है, ये वाला, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस पार्ट इज ओवर, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी में, इन केमिकल प्रॉपर्टी all the chemical properties are over, halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts ये देता नहीं है। So now we need to discuss just one basic character. So once again I want to ask कि
Anyone is having any problem in screen or voice? So I can start the basic character. Screen and voice both are clear. Anyone please give answer. Yes, sir. Okay. So now I am going to start the last topic of this chapter, that is basic nature, basic character. यहाँ एसिडिक नेचर नहीं लिखा है, एल्कोहल एसिडिक भी था, बेसिक भी था, बट अमाइन इज ओनली बेसिक. सो आता है बेसिक नेचर. सो पहला आया कि विच टाइप ऑफ बेस इज अमाइन. अमाइन कौन सा बेस होता है. तीन कॉन्सेप्ट आपको बताया गया बेस में, दैट इज ब्रॉन्स्टेड बेस, लेविस बेस और अर्हीनियस बेस. पहले अमाइन कौन सा बेस होता है ये पता चले. ठीक है. अमाइन, अमाइन की बात हो रही है, मतलब अमाइन ग्रुप की बात हो रही है. वो NH2 चाहे बेंजीन पे लगा हो, चाहे वो NH2 एल्किल पे लगा हो, अमाइन ग्रुप की बात हो रही है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो. ठीक है. सो अमाइन इज ऑफ विच टाइप ऑफ बेस एंड व्हाई. अमाइन बेसिक होता है, ठीक है, बट कौन सा बेसिक होता है, कौन सा बेस होता है. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग so amine is called लेविस बेस. अमाइन को लेविस बेस कहते हैं. इट इज नॉट आर्हीनियस बेस. या आर्हीनियस बेस नहीं है. इट इज नॉट गिविंग द OH माइनस. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था कि जो OH माइनस होता देता है वो बेस. ठीक है. और लेविस में कहा गया था दैट species in which the central atom is having complete octet and one lone pair, that is called base. Lone pair donor is called base. So it is Lewis base. Amine is Lewis base. पहले ये याद रखिएगा, amine is Lewis base. Now इसमें लिखा बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको जो जो मेन है बस वो बता रहा हूँ. नाउ क्वेश्चन इज हियर कि बोथ एलिफैटिक अमाइन एंड एरोमेटिक बोथ आर, ठीक है, बोथ आर बेस और नॉट. सो यस, बोथ आर बेस, दोनों बेस है. नाउ question is here ki aliphatic amine and aromatic amine both are base, then both have the base same basic nature, or someone is stronger base, someone is less basic. ठीक है. So which one is stronger base, aliphatic or aromatic? Then remember, out of these two, ठीक है, aliphatic is stronger base. Aliphatic is stronger बेस होता है. ठीक है. तो पहले ये जान लीजिए कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस, एलिफैटिक और एरोमेटिक. देन एलिफैटिक इज स्ट्रॉन्गर बेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एलिफैटिक इज स्ट्रॉन्गर बेस. एक एक क्वेश्चन का आंसर आप देखते जाए, आपको सारा याद हो जाएगा. व्हाई एलिफैटिक इज स्ट्रॉन्गर बेस. इसके पास भी लोन पेयर है, इसी के कारण इसको बेस कर रहे हैं. रिमेंबर, the basic nature of amine group is due to this lone pair only. और किसी रीजन से ये बेस नहीं है, बिकॉज इट इज लेविस बेस. और लेविस ने कहा था जिसके पास लोन पेयर होता है वही बेस होता है. सो बेसिक नेचर इसके हाइड्रोजन की वजह से नहीं है, बेसिक नेचर इज ड्यू टू इट्स लोन पेयर. सो alkyl group means aliphatic amine is also having lone pair at nitrogen and aromatic amine is also having lone pair at nitrogen. एलिफैटिक में भी लोन पेयर है, एरोमेटिक में भी लोन पेयर है. सी हियर, इन एलिफैटिक अमाइन नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर, इन एरोमेटिक अमाइन नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर. एलिफैटिक अमाइन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एरोमेटिक अमाइन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. देन व्हाई एलिफैटिक इज स्ट्रॉन्गर बेस और मोर बेसिक देन एरोमेटिक. इस चीज को याद रखिए, यही सब क्वेश्चन बस आएगा. Because as you have seen
इफ यू विल रिमेम्बर दिस, अगर आपको ये याद रहेगा, दिस इंफॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू शो, जस्ट वेयर इट इज हियर, सो प्लीज सी दिस। इन एरोमेटिक अमाइन यानी एनिलीन, द लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल एट नाइट्रोजन। लोन पेयर तो नाइट्रोजन पे होता है, but that is not available. Why? Because that is engaged in resonance, क्योंकि ये लोन पेयर किसमें इंगेज है, रिजोनेंस में। वो लोन पेयर लगातार रिजोनेंस करा रहा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। सो दैट लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट एट नाइट्रोजन फॉर फर्दर रिएक्शन। वो किसी रिएक्शन के लिए वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। सो यू विल नॉट से कि लोन पेयर नहीं होता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि इन एरोमेटिक अमाइन नाइट्रोजन इज नॉट हैविंग लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दिस, बोथ आर हैविंग लोन पेयर, बट इन एरोमेटिक अमाइन और एनिलीन, एरोमेटिक अमाइन नाम से भी पूछ सकता है, एनिलीन से भी, एरोमेटिक अमाइन और एनिलीन, द लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल, नॉट प्रेजेंट नहीं, नॉट अवेलेबल, दिस लोन पेयर इज इंगेज इन रिजोनेंस, ये लोन पेयर रिजोनेंस में इंगेज रहता है, अवेलेबल नहीं रहता है। दैट्स वाई इट इज लेस बेसिक, इसलिए इस लेस बेसिक को, ये लेस बेसिक होता है, क्योंकि बेसिक नेचर किसके कारण है, लोन पेयर के कारण है। और जब ये लोन पेयर रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो वो बेसिक नेचर शो नहीं करेगा। दैट्स वाई एल्किल means aliphatic amine is more basic than aromatic. I hope this information is clear कि एलिफैटिक एरोमेटिक बोथ आर, एलिफैटिक एरोमेटिक और एरोमेटिक का नाम भी याद रखिएगा, एनिलीन, आपके में कोई और एरोमेटिक नहीं है तो एनिलीन नाम से भी आ सकता है, केवल एरोमेटिक एरोमेटिक मत याद किएगा, एनिलीन, ठीक है। सो मे भी ये पूछ सकता है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक या एलिफैटिक और एनिलीन में विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर बेस, then aliphatic amine will be more stronger base. Then question, why aliphatic amine is more stronger base? Reason is here कि in aromatic or in aniline, aromatic amine or aniline, the lone pair which present at nitrogen atom, that is not available for reaction, that is engaged, ठीक है, in resonance. But in aliphatic amine, that lone pair nitrogen which present at, that lone pair which present at nitrogen, that is available for reaction. So that's why aliphatic is more, ठीक है, basic. Now next, अभी एक कंपैरिजन और करना है, that is with ammonia. One more comparison is there. एक तो एलिफेटिक हो गया, एक एरोमेटिक हो गया। नाउ नेक्स्ट वन कंपैरिजन इज विथ अमोनिया, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय अमोनिया। सो नेक्स्ट कंपैरिजन, ये तीन कंपैरिजन आपके में है। सो आउट ऑफ एलिफेटिक एंड एरोफेटिक तो आपको पता चल गया कि एलिफेटिक इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक, व्हाई, रीजन इज देयर। नाउ the comparison of ammonia with aliphatic and comparison of ammonia with aromatic, अब ये करना है। so remember aliphatic amine is more, ठीक है, बेसिक देन अमोनिया। एलिफेटिक अमाइन अमोनिया से भी ज्यादा बेसिक होता है, बट ठीक है, एरोमेटिक अमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, एरोमेटिक अमाइन अमोनिया से लेस बेसिक होता है। नाउ फिर से देखिए, सो व्हाट विल बी द पैटर्न, अब पैटर्न क्या हो जाएगा, पैटर्न विल बी हियर कि एलिफेटिक अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया एंड अमोनिया इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन, ये पैटर्न है। मींस एरोमेटिक अमाइन का बेसिक नेचर अमोनिया से भी कम होता है, ठीक है। सो ऐसे आपके एनसीईआरटी में इस ये दिया इस तरीके से, एल्किल अमाइन वर्सेस अमोनिया एंड
एरिल अमाइन और एरोमेटिक अमाइन वर्सेस अमोनिया, ऐसे आपके में हेडिंग दिया हुआ है बेसिक नेचर में। सो रिमेंबर, एलिफैटिक अमाइन इज मोस्ट बेसिक, ammonia is less basic than aliphatic amine, and aromatic amine or aniline is least basic. एरोमेटिक अमाइन क्यों कम बेसिक है ये तो पता चल गया आपको, बिकॉज इट्स लोन पेयर इज इंगेज इन रिजोनेंस। चलो ठीक है, लोन पेयर नहीं, बेसिक नेचर नहीं, या लेस बेसिक नेचर। नाउ यहाँ आए, that in aliphatic amine lone pair is present at nitrogen, and in ammonia also lone pair is present in nitrogen, and they both are not undergoing resonance, ये दोनों रेजोनेंस नहीं करते हैं। देन वाई एलिफैटिक इज मोर बेसिक देन अमोनिया, तब दोनों के पास तो लोन पेयर है और ये रेजोनेंस वाला इफेक्ट भी नहीं शो कर रहे हैं कि रेजोनेंस में। देन द रीजन इज हियर कि इन एलिफैटिक अमाइन नाइट्रोजन इज अटैच विद कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, बट इन अमोनिया नाइट्रोजन इज अटैच विद 3 सिमिलर स्पीसीज, 3 सिमिलर स्पीसीज से अटैच है। सो इन presence in aliphatic amine, the presence of CN bond, due to presence of CN bond, that is more polar bond, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो लेस पोलर बॉन्ड हो गया एंड कार्बन नाइट्रोजन ज्यादा पोलर बॉन्ड हो गया। सो ड्यू टू this more polar bond or this due to presence of CN bond, it is more basic, means its lone pair is more active, इसका लोन पेयर और ज्यादा एक्टिव हो जाता है रिएक्शन करने के लिए। बट इन अमोनिया ऑल द सेम हाइड्रोजन स्पीसीज इज अटैच, सो द एक्टिविटी ऑफ लोन पेयर इज लेस, उसका लोन पेयर थोड़ा इसके कंपैरिजन में लेस एक्टिव होता है, बट दैट इज बेसिक, वो बेसिक होता है। तो बेसिक तीनों होते हैं, बट एल्किल अमाइन इज मोर बेसिक, अमोनिया is less than alkyl amine, but ammonia is more than aromatic amine। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये पैटर्न अभी इसमें और ऐड होगा, आई एम जस्ट एडिंग। अभी क्या किए थे, अभी हम लिए थे तो एलिफैटिक एरोमेटिक, फिर उसमें ऐड किए अमोनिया। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड समथिंग मोर, अब कुछ और ऐड करने जा रहे हैं, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि नेक्स्ट क्लास भी आपका इसी में चला जाएगा। सो सी, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में एक चीज तो डिस्कस हो गया कि एलिफैटिक और एरोमेटिक में कौन ज्यादा बेसिक होता है। सो सी, एलिफैटिक इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको प्लस आई इफेक्ट वाला इंफॉर्मेशन दे रहा है, यू कैन यूज द रिजोनेंस आल्सो। नाउ नेक्स्ट, एरोमेटिक अमाइन इज वीकर बेस देन अमोनिया, देखिए आ गया ना, एलिफैटिक एरोमेटिक से ज्यादा है एंड एरोमेटिक अमोनिया से भी वीक है, अमोनिया से भी वीक है। सो पैटर्न बन गया, एलिफैटिक सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया एंड फिर एरोमेटिक। नाउ आई विल डिस्कस जस्ट वन मोर इंफॉर्मेशन, दैट इज दिस, दो चीजें यहाँ पर आपका दिया रहेगा, के बी एंड पी के बी, के बी एंड पी के बी, के बी एंड पी के बी। सो माइनस लॉग के बी इज कॉल्ड पी के बी, माइनस लॉग, जैसे आप कहते हो माइनस लॉग एच इज कॉल्ड पी एच, माइनस लॉग एच को पी एच कहते हैं, वैसे माइनस लॉग के बी इज कॉल्ड पी के बी, माइनस लॉग के बी इज इक्वल टू पी के बी। बट व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द के बी, के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, इसको याद रखिएगा, के बी इज inversely proportional to pkb, that is kb is basic constant and pkb is its minus log value. So kb is inversely proportional to pkb,
it is showing here. Larger the value of kb, smaller the value of pkb. ठीक है. Now kb is directly proportional to basic nature. बेसिक नेचर, क्योंकि केबी को बेसिक कांस्टेंट कहते हैं, बेसिक नेचर. तो जिसका केबी ज्यादा होगा, केबी वैल्यू, बेसिक कांस्टेंट वैल्यू, दैट विल बी मोर बेसिक. और जिसका बेसिक कांस्टेंट वैल्यू कम होगा, दैट विल बी लेस बेसिक. सो केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर. और अगर पीकेबी देता है, then pkb is inversely proportional to basic nature. मतलब जिसका kb ज्यादा होगा, that will be stronger base, और जिसका pkb जितना कम होगा, that will be stronger base, because kb is inversely proportional to pkb. जो यहाँ लिखा है that is pkb. आपके में सारी वैल्यू pkb फॉर्म में दी हुई है, pkb. सो आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि पहले हम निकालते हैं kb, जो आपने क्लास 11 में फार्मूला पढ़ा है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट, बेसिक कांस्टेंट. एसिडिक कांस्टेंट को के कहते हैं, बेसिक कांस्टेंट को केबी कहते हैं. तो बेस के लिए केबी निकालते हैं. अमाइन इज बेस, और बेस के लिए जितना केबी ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वो बेसिक नेचर होगा. लेकिन जो वैल्यू आपके में दी हुई है, सारा पीकेबी में दी हुई है. सो आपको केबी और पीकेबी में पहले रिलेशन समझना है कि माइनस लॉग केबी इज कॉल्ड पीकेबी, और दोनों की वैल्यू तो केबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी. अगर केबी ज्यादा है तो पीकेबी कम आएगा, और पीकेबी ज्यादा है तो केबी कम आएगा. सो इससे ये पता चला कि केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर एंड पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर. तो इसका मतलब ये है कि जिसका पीकेबी जितना कम, वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस. जिसका पीकेबी जितना ज्यादा, वो उतना वीक बेस. रिमेम्बर दिस. इस सीरीज में ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, नीचे वाला वीक बेस है. इस पॉइंट को याद किया, क्योंकि दो क्वेश्चन भी ऐसा है कि द पीकेबी वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन कहेगा pKb value of benzenamine is high than methenamine. benzenamine की pKb वैल्यू 9.38 है, methenamine की pKb वैल्यू 3.38 है. pKb वैल्यू of benzenamine is high than methenamine, but methenamine is more basic. methenamine is stronger basic. क्यों? Because the basic nature is inversely proportional to pKb value. Those will be stronger base which will have less pKb value. So methenamine is having less pKb value, so it is a stronger base. अभी केवल इतना पढ़ें. अभी हमको चार पांच चीजें इसमें और डिस्कस करना है बेसिक नेचर में. देन आफ्टर, अभी केवल ये हुआ, अभी चार पांच चीजें और डिस्कस करना है, पैटर्न डिस्कस करना है. ठीक है. Then after this basic nature will be over. So tomorrow we will discuss this basic nature, complete this chapter, and I will start the biomolecule. और कल के क्लास में ही बायोमोलिक्यूल शुरू भी हो जाएगा. मे बी इट विल टेक 10 या 15 मिनट, एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर वी विल डिस्कस द बायोमोलिक्यूल. हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल.